Assalamu alaikum. I'm Abdul Sattar, your chemistry tutor. Dear friends, I warmly welcome all of you in today's lesson. In today's lesson, we are going to discuss the atmosphere and its layers. You know what the atmosphere is and how many layers of the atmosphere are. We are going to discuss shortly. जब आपके जहन में एटमॉस्फेयर का कॉन्सेप्ट आता है then one field of the chemistry is going to be involved in that one, and that is the environmental chemistry. तो जहन में खुद तो खुद आपके environmental chemistry का concept आ जाता है. तो पहले हम थोड़ा सा देखेंगे what the environmental chemistry is and which sort of the things are going to be dealt with the help of the environmental chemistry. उसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे कि what are the segments of the environment, and finally we are going to focus our lesson, that's a major topic of today's lesson, that is the atmosphere and its layers. Friends, environmental chemistry जो आजकल is a hot topic of the sciences, because this is the chemistry which deals with the man-made things that we are going to pollute our atmosphere, pollute our environment. वो chemicals, वो चीज़ें जिसके थ्रू हम अपने environment को जो है वो we are spoiling the environment, that are going to be discussed under the head which we call as the environmental chemistry. अब ये environmental chemistry के साथ जो बाकी चीज़ें involved होंगी, we are going to shortly discuss these as well. First, I am going to introduce you what are the outcomes of today's lesson. आज जो हम lesson करने वाले हैं उसके जो learning outcomes है वो क्या हैं, we are going to see over here. Here is the topic that you can see on your television screens, that's atmosphere and its layers. और उसके साथ साथ दो figures आपको नजर आएंगे नीचे, उनमें भी इस तरह का एक concept दिया गया है कि what are some sort of the layers जो है वो अर्थ के साथ दिखाए गए हैं. ये एटमॉस्फेयर है जिसमें ट्रोपोस्फेयर होगा, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है और थर्मोस्फेयर है. ये तमाम चीज़ें जो होंगी, these are the सब टॉपिक्स ऑफ today's lesson जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे. लर्निंग आउटकम्स जो हमारे लेसन के हैं, here they are, that first लर्निंग जो हमारे लेसन का होगा, there is define environmental chemistry. कि environmental chemistry है क्या. उसके बाद हम देखेंगे define the atmosphere, कि atmosphere itself क्या है, explain environmental spheres, उसके बाद explain composition of the atmosphere. उसके बाद हम देखेंगे जी डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर, इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं वो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे. समराइज करेंगे हम अपने कंपोनेंट्स ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर को. तो जो मेजर हमारी चीज़ें जो आज के लेसन की होंगी, दैट विल बी अबाउट द ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर. सो दीज आर सम ऑफ द लर्निंग आउटकम्स ऑफ टुडेज लेसन. जब हम लेसन कंप्लीट कर चुके होंगे, देन होपफुली यू विल वेरी मच बी एबल टू know all these things जो हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं. Friends, we are going to start with the environmental chemistry because these all things are related to the environmental chemistry. तो environmental chemistry के अंदर क्या चीज़ें involved होंगी, we are going to see this one first. And here is the environmental chemistry. As I told you earlier, that's a branch of chemistry that deals with the chemicals, that will go to deal with the chemicals and other pollutants in the environment, is called as the environmental chemistry. So this is the field of the chemistry that actually deals with the pollutants, चाहे वो chemical के form में हो, चाहे वो natural हो, चाहे man made हो. These things are going to be dealt with the help of the chemistry which we call as the environmental chemistry. उसके साथ साथ environmental chemistry हमें क्या क्या बताता है, that is environmental chemistry helps to study sources. ये हमें हेल्प कराएगा कि सोर्सेज को तलाश करें कि जो पोल्यूट कर रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर को, रिएक्शंस कौन कौन से इन्वॉल्व हैं उसको पोल्यूट करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द केमिकल्स हैं एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं दैट आर क्रिएटेड बाय human activities in the environment and their adverse effects on human beings. Not only human beings, overall what are the adverse effects of these things on the you can say जो जानदार चीज़ें हैं उनके ऊपर क्या इसके असरात होंगे, we are going to discuss these as well. So this is what we call as the environmental chemistry. एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट पजेस डिफरेंट सेगमेंट्स. एनवायरनमेंट के डिफरेंट सेगमेंट्स में जो है एनवायरनमेंट को तकसीम किया गया है और 4 मेजर सेगमेंट्स में एनवायरनमेंट को तकसीम किया गया है, डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, जिसमें हमारे पास होगा हाइड्रोस्फीयर, जिसमें हमारे पास बायोस्फीयर होगा, जिसमें लिथोस्फीयर होगा और इसी तरह से 4 सेगमेंट्स हैं जो आपके सामने हैं जिसमें एटमॉस्फेयर भी होगा. फर्स्ट सेगमेंट दैट वी विल गो टू डिस्कस दैट्स अ लिथोस्फीयर.
उसके बाद हम देखेंगे व्हाट द हाइड्रोस्फीयर इज, उसके बाद हम देखेंगे व्हाट द बायोस्फीयर इज, एंड फाइनली वी विल गो टू डिस्कस द एटमॉस्फेयर बिकॉज एटमॉस्फेयर इज मोर इंपॉर्टेंट. दिस इज द हेडिंग ऑफ द टुडेज लेसन. सो द मेजर जो हमारा फोकस होगा वो एटमॉस्फेयर के ऊपर होगा. आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल दीज सेगमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. चारों सेगमेंट जो हमने बात की है इनका मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा. उसके बाद हम देखेंगे व्हाट द एटमॉस्फेयर एंड उसके बाद हम उसके लेयर्स की तरफ जाएंगे कि व्हाट आर द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी व्हाट, जस्ट लेट मी select the color of the pen. Okay, now the first segment of the environment is the lithosphere. The soil covering the rocks which constitute Earth's crust is called the lithosphere. The soil covering the rocks which constitute Earth's crust is called as the lithosphere. इस चीज का हमने नाम रखा हुआ है, that's called the lithosphere. यानी उसके अंदर rocks हैं, उसके अंदर soil जो उन rocks को cover कर रही है on the surface on the crust of the earth is called as the lithosphere. The soil has come into existence as a result of weathering of rocks. The main elements of the earth's crust are oxygen, जो कि अर्थ के ऊपर डिफरेंट एलिमेंट की कंपोजिशन है, यानी अर्थ का जो क्रस्ट बना हुआ है दैट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. तमाम एलिमेंट जो हमारे पास अवेलेबल हैं दे आर पार्ट ऑफ द यू कैन से अर्थ्स क्रस्ट. और उसके साथ जो मेजर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं 50% जो एटम अर्थ के क्रस्ट के हैं दे आर ऑफ द ऑक्सीजन. उसके बाद जो 26% एटम्स हैं दे आर ऑफ द सिलिकॉन. और जो थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा अमाउंट आती है दैट्स ऑफ द एल्यूमिनियम व्हिच पोसेस अबाउट द 7% ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट. यानी हमारे जमीन का जो क्रस्ट है, ऊपर की जो सरफेस बनी हुई है जिसको हम लिथोस्फीयर का नाम दे रहे हैं. लिथोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ एक्चुअली 3 मेजर एलिमेंट, जिसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी है दैट्स ऑफ द ऑक्सीजन. सेकंड नंबर पे आपको सिलिकॉन मिलेगा और थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम है. उसके बाद रेस्ट ऑफ द एलिमेंट आर इन द ट्रेस क्वांटिटीज जो कि अवेलेबल हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द लिथोस्फीयर. सेकंड जो सेगमेंट है अर्थ का दैट्स कॉल्ड एज द हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रो, यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ द हाइड्रो इज. हाइड्रो मींस वाटर, यानी वो स्फीयर जिसमें वाटर अवेलेबल होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द हाइड्रोस्फीयर. द स्फीयर ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर. यानी जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज वाटर के अवेलेबल हैं ऑल ऑफ देम आर टेकन इनटू द सेगमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट व्हिच कॉल्ड एज द हाइड्रोस्फीयर, जिसके अंदर आपको ओशंस मिलेंगी, इसके अंदर आपको लेक्स मिलेंगी, उसके बाद रिवर्स हैं, रेन है, ग्लेशियर्स हैं एंड ground water. All these composed of a part of the environment which we call as the hydrosphere of the segment of the environment. उसके बाद अगर जाएं, हमें पता है कि जी अर्थ के ऊपर मोर देन 70% हमारे अर्थ के ऊपर वाटर है. इट्स जो मेजर कंपोनेंट है हाइड्रोस्फीयर हमारे एनवायरनमेंट का, दैट पोजेसेस 70% ऑफ द अर्थ, जो comprises of the 70% of the hydrosphere. Unfortunately, only 1% of the Earth's water resources are available as fresh water. यानी जो वाटर हम यूजेबल है, जिसको हम नॉर्मली पीने के लायक है या जो बाकी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर वगैरह के लिए, दैट्स ओनली 1%. हालांकि इतने आपने देखा होगा ओशंस हैं, 70% वाटर है अर्थ के ऊपर, फिर भी उसका जो नेचुरल सोर्सेज में से जो फ्रेश वाटर है दैट्स ओनली 1% दैट वी कैन यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. जिसमें इंडस्ट्रीज भी हैं, जिसमें घरों में इस्तेमाल होने वाला पानी भी है, और एग्रीकल्चर के तौर पे जो पानी में इस्तेमाल करते हैं दैट्स ओनली 1% ऑफ दैट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. लेकिन ये इतना सारा पानी आखिर अल्लाह ताला ने हमें क्यों दिया है? इसकी एक वजह है, दिस इज थर्मोस्टेट फॉर दिस अर्थ. ये हमारे इस जमीन के लिए एक तरह का थर्मोस्टेट है दैट रेगुलेट्स, दैट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. यू नो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो बहुत ज्यादा होती है. दिन के टाइम में वाटर जो है वो एनर्जी को, सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता रहता है और रात के टाइम में इसी रोशनी को दोबारा एमिट करता है, ताकि दिन के टाइम में बहुत ज्यादा गर्म ना हो जाए और रात के टाइम में बहुत ज्यादा ठंडी ना हो जाए, ताकि इससे इस एनवायरनमेंट को, इस एटमॉस्फेयर को, इस जमीन को रहने के लायक बनाने के लिए अल्लाह ताला ने इतना सारा पानी दिया है. साइंटिस्ट कहते हैं कि इफ देयर वुड हैव नो वाटर ऑन द अर्थ देन इन द डे टाइम वी वुड हैव बीन रोस्टेड एवरी डे एंड इन द नाइट टाइम वी वुड हैव बीन frozen every night. Oh, that's why this sphere, this segment of the environment is called as the hydrosphere. तो आपको पता है, जैसे मैंने बताया कि only 1% ऐसा वाटर है जो कि फ्रेश वाटर के तौर पे इस्तेमाल होता है, जिसको हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली. This water being used by agriculture, industry and for domestic purposes as well. Okay.
Third segment of the environment, which we call as the biosphere, that's very much important for us because we are present in that segment of the earth, segment of the environment, which is called as the biosphere. Biosphere is the region of earth capable of supporting life. यानी ये वो जगह है एनवायरनमेंट की जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही होती है. इट इंक्लूड्स लोअर एटमॉस्फेयर, the oceans, the rivers, lakes and soils. Biosphere exhibits an interaction of organisms with lithosphere, hydrosphere and atmosphere. This is very important segment of the environment because this contains the life, this contains the life और ये interaction पैदा करता है. बाकी जो remaining हमारे पास spheres हैं, बाकी जो segments हैं, उनके दरम्यान एक interaction produce करता है, that's with the help of the life. Fourth जो इम्पॉर्टेंट तरीन जो हमारे लिए बहुत अहम है, दैट्स द एटमॉस्फेयर. दैट्स अ फोर्थ सेगमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट जिसको नाम हमने दिया हुआ है, दैट्स कॉल्ड एज द एटमॉस्फेयर. एंड दिस सेगमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट कंप्राइजेस ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस which are essential for sustaining life on earth, जिसमें सबसे important जो है वो ऑक्सीजन है, that's required for breathing. Carbon dioxide is required for plant photosynthesis. यानी कार्बन डाइऑक्साइड अगर ना होता तो photosynthesis would have been not possible. And nitrogen is used by nitrogen fixing bacteria. Atmosphere also maintains the heat balance of the earth. This is what, friends, we call as the environment. And you have now very much able to be aware of the segments of the environment की जो चार major segments हैं environment की, जिसके अंदर lithosphere है, जिसके अंदर hydrosphere है, biosphere है, उसके साथ साथ atmosphere है. ये चारों segment of the जो environment, they are very much essential for us because without these one there would have been no completion of the life, or that's why God has gifted us with all these things on this earth. Okay friends, now we are moving towards the atmosphere जो कि हमारा major topic है. But friends, it's now time to take a short break. Stay tuned. वेलकम बैक जी फ्रेंड्स. ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट एंड नाउ दैट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन. एज आई अर्लियर टोल्ड यू, दिस मे बी इन मोर डिटेल इन योर बुक्स. आई हैव जस्ट गिवन यू इंट्रोडक्शन बिकॉज आवर मेजर एम्फेसिस विल बी ऑन द एटमॉस्फेयर एंड इट्स लेयर्स. जो मेजर हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे एंड वी आर गोइंग टू सी व्हाट वी से एज एटमॉस्फेयर. Friends, the layer of gases surrounding the earth is called the atmosphere. वो gases का layer जो कि earth को surround कर रहा होगा, that's called as the atmosphere. एंड जो मेजर एटमॉस्फेयर जो हमारा कंसिस्ट करता है वो डेफिनेटली गैसेस के ऊपर ही कंप्राइज करता है. एंड गैसेस से द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, दैट्स दी नाइट्रोजन विच इज़ अबाउट 78% हमारे एयर का जो कंपोजिशन बनती है, दैट्स कंपोज्ड ऑफ दी नाइट्रोजन. उसके बाद 21% इसके अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड द रेस्ट ऑफ दी अदर सब्सटेंसेज, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर के वेपर्स हो सकते हैं, इनर्ट गैसेज हो सकती हैं, डस्ट के पार्टिकल्स हो सकते हैं और काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ जो हैं खासतौर पे सिटीज़ के एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा मिलेंगी आपको. दे आर ऑल कंपोज्ड ऑफ 1%, जो बाकी मानदा होंगे दैट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल दीज things. So the atmosphere comprises of the mixture of different gases, जिसमें सबसे important तरीन गैस होगा वो आपका नाइट्रोजन होगा, जो कि मेजर कंपोनेंट है इसका. as you'll see here, I have given you in the form of percentages. नाइट्रोजन 78% मिलेगा आपको, 21% ऑक्सीजन है, 0.9% आर्गन है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है. बाकी जो ट्रेस एलिमेंट्स, ट्रेस अमाउंट्स हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस की, जिसमें हीलियम है, मीथेन है, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड वाटर वेपर्स हैं. ऑल दीज कंप्राइज टू फॉर्म a layer of the atmosphere, which we call as normally the segment of the environment which we call as the atmosphere. Okay, here are the different layers of the atmosphere. First I introduce you in the form of written work, and then I'll go to show you this picture.
Now friends, you can see on your television screens what we call as the atmosphere are the 4 layers. That's first layer is the troposphere, second layer is the stratosphere, third layer is called the mesosphere, and the fourth layer is called the thermosphere. All these 4 स्फीयर जो एटमॉस्फेयर के स्फीयर्स हैं उनको हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करें कि व्हाट दे आर एंड व्हाट आर देयर इम्पैक्ट्स ऑन आवर लाइफ, उसके ऊपर क्या जो है उसके असरात पड़ते हैं वो हम देखेंगे। एक पिक्चर के साथ मैं आपको दिखा सकता हूं कि हाउ वी हैव डिवाइडेड दिस वन आउट। फर्स्ट जो आपको नजर आएगा दैट इज द ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद आगे जाएंगे तो आपको स्ट्रेटोस्फीयर नजर आएगा, उसके बाद आप आ जाएंगे तो जी मेसोस्फीयर है, एंड फाइनली यू विल हैव दी थर्मोस्फीयर। एक और पिक्चर है जिसमें अर्थ शो किया गया है, अर्थ के अराउंड डिफरेंट गैसेस का लेयर है और इस लेयर का नाम रखा गया है दैट्स कॉल्ड एज दी एटमॉस्फेयर, जिसमें आपको अर्थ नजर आएगा, ट्रोपोस्फीयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर है, उसके बाद मेसोस्फीयर है और लास्ट जो आपका आएगा वो थर्मोस्फीयर या आयोनोस्फीयर का जिसको नाम दिया जाएगा दैट इज द 4 मेजर लेयर्स ऑफ द अर्थ। अब जो एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट दे आर एंड व्हाट आर देयर इम्पैक्ट्स ऑन आवर। जो पहला लेयर है एटमॉस्फेयर का दैट्स कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर। अब इस ट्रोपोस्फेयर में क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी? द फर्स्ट 10 to 12 किलोमीटर लेयर ऑफ एयर अबव द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर, यानी तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर अगर अर्थ से ऊपर जाएं तो आपको जो मिलेगा दैट्स कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर। द टेम्परेचर इन दिस रीजन फॉल्स बिटवीन 290 केल्विन टू 220 केल्विन। दिस पोर्शन कंटेन्स 70% ऑफ द एटमॉस्फेरिक मास with different gases, definitely there's nitrogen, oxygen, carbon dioxide and water vapors. Weather phenomena such as clouds and rainfall are characteristic of this region. ये वो जगह है जहाँ पे जो मुख्तलिफ environmental या जो weathering के process हो रहे होते हैं जिसमें clouds और rainfall वगैरह होता है, और उसके साथ साथ जो planes हैं, birds हैं या जो balloons हम छोड़ते हैं वो किस एरिया में घूमते हैं, they also float, they also move in this region of the atmosphere which we call as the troposphere. Second sphere which we call as the stratosphere. अब stratosphere में क्या है? The region of atmosphere extending from 10 km to 40 km is known as stratosphere. उसके साथ साथ temperature in this layer of atmosphere increases slowly from about 220 Kelvin to 270 Kelvin. The air in this region is very dry and clouds from troposphere cannot penetrate into it. The presence of ozone layer in this region protects life on earth from UV radiations. This layer is, friends, very important because this is one thing, this is a very dry layer of the atmosphere and the clouds cannot penetrate into it. वहाँ पे कोई clouds नहीं मिलेंगे आपको। cloud जितने भी बनते हैं यानी weather के जो process हो रहे होते हैं they are all take place in the first sphere which is called the troposphere. Stratosphere के अंदर एक बहुत important चीज exist कर रही होती है। अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा इनाम हमारे लिए रखा हुआ है and that's the presence of the ozone layer. ओजोन का लेयर यहाँ पे मौजूद है जो कि फिल्टर करता है डायरेक्टली सन की लाइट को, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वहाँ तक आती हैं उनको फिल्टर करके हमारी तरफ जो है वो मूव कराता है ताकि जो लाइफ है यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इजीली यहाँ पे मूव कर सकें। अदरवाइज जो 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 इंफ्रारेड रेडिएशंस सॉरी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यूवी रेडिएशंस वहाँ से आती हैं वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं कि मुसलसल अगर हमारे जो एनिमल की स्किन है उसके ऊपर गिरे हैं तो दे कैन कॉज स्किन कैंसर एज वेल। सो अल्लाह ताला ने एक बड़ा इनाम हमारे लिए रखा हुआ है कि ओजोन लेयर मौजूद है इस लेयर के अंदर, इस सेगमेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर के अंदर, व्हिच वी कॉल एज द स्ट्रेटोस्फेयर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन इज द मेसोस्फेयर, द थर्ड जो लेयर है अर्थ का एटमॉस्फेयर का दैट वी कॉल एज द मेसोस्फेयर। इसके अंदर क्या चीजें हो सकती हैं? द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम 40 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर इज कॉल्ड द मेसोस्फेयर. The temperature continues to rise to about 300 Kelvin and then falls to a minimum of about 180 Kelvin near 80 kilometers. Last जो थर्मोस्फेयर यानी जो एटमॉस्फेयर का फोर्थ पार्ट है, फोर्थ सेगमेंट है, फोर्थ लेयर है, दैट्स कॉल्ड द थर्मोस्फेयर. और थर्मोस्फेयर के अंदर क्या चीजें पार्टिसिपेट कर सकती हैं? द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम 80 किलोमीटर्स टू 500 किलोमीटर इज टर्म्ड एज थर्मोस्फेयर. The temperature rises continuously to 1500 Kelvin. यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है and that ranges about 1500 Kelvin के बराबर टेम्परेचर
पहुंच सकता है। दिस रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी, बिकॉज गैसेस की जो क्वांटिटी है वो डायमिन्यूट होती जाएगी, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, दूर होते जाएंगे अर्थ से, द गैसेस बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, एंड दैट्स व्हाई हियर जो आपको प्रेशर मिलेगा गैसेस का वो बहुत लो होगा, उसके साथ साथ बहुत ही लो डेंसिटी होगी, बिकॉज द गैसेस आर वेरी स्मॉल इन अमाउंट। गैसेस स्पीशीज जो हैं इस रीजन के अंदर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती होंगी? दिस लेयर आर प्रेजेंट एज cations, anions, free electrons, neutral atoms and molecules. This region is also termed as ionosphere due to the ionization of gases at high temperature. क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली जितने बाकी मानदा मॉलिक्यूल गैसेस के होंगे वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में कम एग्जिस्ट कर रहे होंगे और आयोनिक स्टेट में ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहे होंगे, बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ दैट रीजन इज वेरी हाई, सो दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस will convert into the form of the cations, into the form of the anions, even into the form of the free electrons या atoms के फॉर्म में वहाँ पे gases मौजूद हो सकती हैं. So this sphere of the atmosphere is also called as the ionosphere because of the presence of the large quantity of the ions in this region. अब वो ions क्यों बन रहे हैं? Because when you move from अर्थ टुवर्ड्स दी लास्ट स्फीयर, दैट्स थर्मोस्फीयर, जो एटमॉस्फेयर का स्फीयर है, वहाँ आप जैसे जैसे मूव करते जाएंगे टेम्परेचर हाई होता जाएगा और उस हाई टेम्परेचर की वजह से जो रिमेनिंग गैसेस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो कन्वर्ट हो चुके होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयंस, चाहे वो केटायंस हो, एनायंस हो, फ्री रेडिकल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज ई थर्मोस्फीयर. और इसके बाद जो है वो स्पेस आता है जहाँ पे मुख्तलिफ जो शटल्स हैं, स्पेस शटल्स वगैरह या जो डिफरेंट चैनल जिस फ्रिक्वेंसी पे आ रहे होते हैं वहाँ पे वो जो सैटेलाइट्स हैं वो मूव कर रही होती हैं और उस रीजन का हम नाम देंगे दैट्स कॉल्ड एज ई स्पेस. वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें पॉसिबली हो सकती होंगी. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज ई एटमॉस्फेयर. और मेजर जो आपने देखा उसके 4 लेयर्स बनते हैं. जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है वो हमारे जो अर्थ के करीब तरीन है, दैट्स दी ट्रोपोस्फेयर. उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर हमने देखा, उसके बाद हमने मेसोस्फेयर देखा और लास्ट जो था वो थर्मोस्फेयर था जिसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है और दैट्स आल्सो कॉल्ड एज द आयोनोस्फेयर ऑफ द अर्थ एज वेल. सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द एटमॉस्फेयर. अब एटमॉस्फेयर के लेयर हमने चेक किए, हमने कुछ चीज़ और इससे रिलेटेड देखनी है. खासतौर पे दो जो नज़दीक तरीन लेयर्स हैं उनको कंपेयर करना है कि व्हाट इज द कंपेरेबिलिटी ऑफ these two layers, and these are the stratosphere and the troposphere जिनके दरमियान हमने comparison देखना है. Okay, now you can see here this is a differentiation between the troposphere and the stratosphere. इन दोनों spheres के दरमियान हमने differences देखने हैं कि possible differences क्या हो सकते हैं. जो चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उन्हीं में से हमने डिफरेंट के डिफरेंसेस प्रोड्यूस कराए हैं. फॉर एग्जांपल ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को कंपेयर करें तो उनकी कंपेरेबिलिटी हमें क्या शो कराती है. दिस लेयर यानी फर्स्ट जो ट्रोपोस्फेयर का लेयर है, दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू 10 to 12 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. उसके बाद अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर में जाएं तो वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है. दिस लेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम 10 to 40 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. सेकेंड जो डिफरेंस इन दोनों के बना सकते हैं, टेम्परेचर रिमेन्स बिटवीन 220 केल्विन टू 290 केल्विन, वाइल इन द स्ट्रेटोस्फेयर टेम्परेचर रिमेन्स बिटवीन 220 केल्विन टू 270 केल्विन. थर्ड जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों लेयर्स का, मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमेना सच एज क्लाउड्स एंड रेनफॉल अकर इन दिस रीजन. जितने भी वेदर के प्रोसेस हो रहे होते हैं, चाहे जो है वो क्लाउड्स हैं या रेनफॉल है, जितने भी प्रोसेस वेदर से रिलेटेड होते हैं, ऑल ऑफ देम will take place in this region of the atmosphere which is called the troposphere. Stratosphere में ये क्यों नहीं हो सकता? Because this sphere is a very dry sphere. तो वहाँ पे जो clouds की penetration है वो ना होने के बराबर होती है. And the third point will go to clear it out. The air in this region is very dry. Therefore, clouds from troposphere cannot penetrate in this region. चौथा जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के दरमियान, दैट्स दिस इज रिच इन ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग. ऑक्सीजन जो है वो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी हमारे नज़दीक तरीन अर्थ के अंदर होती है, जिसका जिसको हमने नाम दिया है दैट्स ट्रोपोस्फेयर. एंड दिस कंटेन द लार्जर क्वांटिटी ऑफ द ऑक्सीजन, वाइल द स्ट्रेटोस्फेयर विल बी रिच इन द अदर फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन जो कि एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन का, एंड दैट वी कॉल एज द
ओजोन लेयर, और ओजोन जो है आपको पता है कि यह प्रोटेक्ट कर रहा होता है अर्थ को फ्रॉम द डेंजरस रेडिएशंस कमिंग आउट ऑफ द सन. सो दीज आर द डिफरेंसेस दैट यू कैन डिफरेंशिएट द टू लेयर्स फ्रॉम वन अनदर. जो नज़दीक तरीन लेयर हैं अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर के, वो ट्रोपोस्फेयर है और स्ट्रेटोस्फेयर है, और एक दूसरे से ये कितने डिफरेंट हैं दैट यू कैन सी इन दिस डिफरेंशिएशन टेबल के अंदर आप चेकआउट कर सकते हैं. जी फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू समराइज द कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. फ्रेंड्स, नाउ अगेन इट्स अ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. स्टे विद अस. Welcome back. जी फ्रेंड्स, ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे द डिफरेंशिएशंस बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, और अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं फ्रेंड्स, उसमें हमने देखा कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है क्या, वो किसी से डील करती है. उसके साथ साथ हमने देखा कि व्हाट आर द एनवायरमेंटल सेगमेंट्स, बिकॉज एटमॉस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंटल सेगमेंट. तो हमने उसको डिस्कस किया पहले कि जी व्हाट आर द एनवायरमेंटल सेगमेंट्स, और जिसमें हमने ये देखा कि एनवायरमेंटल सेगमेंट्स में लिथोस्फेयर आता है, एनवायरमेंटल सेगमेंट्स में बायोस्फेयर आता है, उसमें हाइड्रोस्फेयर आता है, और उसके अंदर एटमॉस्फेयर आता है. तो चारों सेगमेंट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है उसकी हम इंपॉर्टेंस भी देख चुके हैं, और वो किस चीज़ के ऊपर कंप्राइज करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो ये मिलके और तमाम चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उसको हमने देखा. उसके बाद हमने देखा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजर पार्ट है एनवायरमेंट का, दैट इज द एटमॉस्फेयर. एंड विदाउट दैट यू नो दैट वी वुड हैव नॉट पॉसिबल टू हैव अ लाइफ ऑन द अर्थ. दैट is the presence of the oxygen, and ना सिर्फ ऑक्सीजन बल्कि हमारे पास मेजर जो गैसेस मौजूद हैं एटमॉस्फेयर के अंदर. द एटमॉस्फेयर बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ द लेयर ऑफ द गैसेस प्रेजेंट अराउंड द अर्थ. जो अर्थ को जो सराउंड किया हुआ है एक लेयर ऑफ गैसेस ने, उसको हम नाम दे रहे हैं कि दैट्स कॉल्ड एज द एटमॉस्फेयर. और उसके अंदर हमें पता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट गैसेस हैं वो 3 हैं, और वो तीनों कौन कौन सी हैं? दैट्स नाइट्रोजन, जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है, और उसके बाद यू नो दैट अंडर नॉर्मल कंडीशन नाइट्रोजन के नॉट रिएक्ट. नाइट्रोजन नॉर्मली रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी सारी क्वांटिटी में नाइट्रोजन क्यों दी है? बिकॉज जो प्लांट्स हैं दे रिक्वायर द नाइट्रोजन. यानी जो प्लांट्स का फूड है, जैसे हम स्टार्च खाते हैं, जो डिफरेंट हम चीज़ें फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो इस तरह से जो प्लांट्स हैं उनके लिए नाइट्रोजन चाहिए होती है. और नाइट्रोजन अल्लाह ताला ने इतनी सारी क्वांटिटी में जो प्रोवाइड करके दी है, आप डायरेक्टली प्लांट इसको नहीं यूज कर सकते. नाइट्रोजन यानी N2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्लांट्स इसको यूज नहीं कर सकते. तो फिर क्या करते हैं? अल्लाह ताला ने एक निजाम रखा हुआ है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है, जो कि खास तौर पे लेग्यूम्स प्लांट होते हैं, जो दालें हैं जैसे, उसके ऊपर एक एंजाइम होता है जो कि उनको कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजनस फूड के अंदर. इस तरह से जो बाकी क्वांटिटी नाइट्रोजन की पूरी होती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो कहाँ से आती है? दैट इज जब थंडर स्टॉर्म हो रहा होता है तो उस वक्त नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं. थंडर स्टॉर्म्स जब होते हैं तो नाइट्रोजन ऑफ द एटमॉस्फेयर और ऑक्सीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर कंबाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ, जो रेन वाटर होता है उसके साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद फिर आगे जाके कैल्शियम मैग्नीशियम ऑफ अर्थ के साथ मिलके और ये नाइट्रोजनस फूड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और इस तरह से जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है वो अपना फूड मटेरियल हासिल करते हैं. सो इस तरह से नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑक्सीजन आपको पता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ब्रीदिंग प्रोसेसेस. अगर ऑक्सीजन ना हो तो डेफिनेटली यू विल फील अ प्रॉब्लम इन योर ब्रीदिंग. और कार्बन डाइऑक्साइड जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन होती है फॉर द प्लांट्स. अदरवाइज जो प्लांट्स अपना कार्बोहाइड्रेट से खासतौर पे अपना जो फूड है वो जनरेट नहीं कर सकते थे विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये एक तरह का टोटल सेगमेंट बनता है एटमॉस्फेयर का, टोटल सेगमेंट बन जाता है एनवायरमेंट का, व्हिच वी कॉल एज द एटमॉस्फेयर. उसके बाद हमने देखा कि एटमॉस्फेयर के डिफरेंट सेगमेंट्स आते हैं, डिफरेंट उसके लेयर्स आते हैं, जिसमें हमने देखा कि ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, और उसके साथ साथ हमने लास्ट देखा कि जी थर्मोस्फेयर है. सो दीज ऑल कंप्राइज, 4 स्फीयर कंप्राइज टू फॉर्म द एटमॉस्फेयर.
उसके बाद इनकी अहमियत क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, वो भी हमने डिस्कस की। और हमने ये देखा कि दोनों लेयर्स, खासतौर पे जो फर्स्ट 2 लेयर्स हैं आपके कोर्सेज के हवाले से हम अगर बात करें तो, क्योंकि दोनों लेयर का डिफरेंस बताना है कि स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के अंदर क्या डिफरेंसेस आते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया। अब हम उसको समराइज करेंगे कि इन दोनों लेयर्स में कौन कौन सी चीजें पॉसिबली मौजूद होती हैं। टू समराइज द स्ट्रेटोस्फीयर एंड द troposphere, what are the summarizations of this process? You can see in this brief summary of these things. जो 2 स्फीयर्स हैं, खासतौर पे जो ट्रोपोस्फीयर है और स्ट्रेटोस्फीयर है, इन दोनों के दरमियान अगर हम समराइज करें कंपोनेंट्स को तो कैसे बन जाते हैं? दैट इज बोथ स्फीयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर जनरली कॉल्ड होमोस्फीयर्स। इन दोनों लेयर्स को मिला के हम बोलते हैं कि ये होमोस्फीयर्स हैं। क्यों बोलते हैं इनको होमोस्फीयर्स? बिकॉज द कंपोजिशन ऑफ गैसेस इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। इस दोनों लेयर्स के अंदर जो गैसेस की कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहती है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ई होमोस्फीयर्स। सेकेंड, अगर हम इनके समरी में काउंट करें, द टेम्परेचर ऑफ द होमोस्फीयर फॉल्स बिटवीन 220 केल्विन टू 290 केल्विन। ओवरऑल जो दोनों लेयर्स के दरमियान का जो टेम्परेचर है वो 220 केल्विन से 290 केल्विन तक का टेम्परेचर पॉसिबली रह सकता है। लार्जर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फीयर, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा क्वांटिटी जो वो ट्रोपोस्फीयर के अंदर मौजूद होगी, व्हाइल द स्ट्रेटोस्फीयर इज रिच इन ओजोन। जो ओजोन का लेयर है वो रिच होगा स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। उसके बाद अगर हम आगे चलें और हम देखें कि जी ऑल द वेदर चेंजेस ऑफ एटमॉस्फेयर टेक प्लेस इन ट्रोपोस्फीयर। जितने भी वेदर के फिनोमेना हो रहे होते हैं, चाहे वो रेनफॉल हो रही है, चाहे वो क्लाउड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, चाहे कहीं बर्फबारी हो रही है, तमाम जो फिनोमेना टेक प्लेस करेंगे ये ऑल टेक प्लेस करते हैं आपके एटमॉस्फेयर के सेगमेंट में, विच इज कॉल्ड एज ई ट्रोपोस्फीयर। While clouds, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि कैनॉट पेनिट्रेट इनटू स्ट्रेटोस्फीयर। क्यों उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं हो सकते? बिकॉज द ड्राइनेस ऑफ दिस लेयर, ये लेयर सबसे ज्यादा ड्राई होता है, इसलिए वहां पे जो क्लाउड्स की पेनिट्रेशन है, क्लाउड का जो पहुंचना है वो मुमकिन नहीं है। दैट्स व्हाई ऑल द वेदर प्रोसेसेस विल गो टू टेक प्लेस इन वन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर व्हिच वी कॉल एज द ट्रोपोस्फीयर। इस लेयर के अंदर सबसे ज्यादा जो वेदर फिनोमेना, ऑल ऑफ द इनफैक्ट जो फिनोमेना टेक प्लेस करते हैं वेदरिंग के, दे टेक प्लेस इन द ट्रोपोस्फीयर। सो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक जो हमने आज डिस्कस किया है एटमॉस्फेयर। एक छोटा सा मैं आपको एनिमेशन के फॉर्म में दिखाना चाह रहा हूं कि व्हाट आर द these layers, ये तीनों जो 4 हमने लेयर खासतौर पर एटमॉस्फेयर के देखे हैं, ये एक छोटे से एनिमेशन के फॉर्म में आपको दिखा सकता हूं कि कौन सी चीज कहां टेक प्लेस कर रही होती है। Here we are going to start this one out। अब आप देखेंगे कि मुख्तलिफ आपको चीजें नजर आ रही हैं नीचे। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है, एरोप्लेन है, हॉट बैलून है, क्लाउड्स हैं, सैटेलाइट है, ये कहाँ कहाँ मूव करती हैं इन चारों लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल बैलून जो है इसको हम ले जाएंगे आपके लोअर रीजन ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर, ये मूव करेगी। इसी तरह से जो एरोप्लेन है ये अपर रीजन ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर मूव करता है, सॉरी ट्रोपोस्फीयर है, ये ट्रोपोस्फीयर के अंदर मूव करेगा। इसी तरह से एरोप्लेन आल्सो मूव्स ऑन द अपर रीजन ऑफ द ट्रोपोस्फीयर। क्लाउड्स आल्सो एग्जिस्ट इन द अपर रीजन ऑफ द ट्रोपोस्फीयर, ये स्ट्रेटोस्फीयर में नहीं जा सकते। जो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है ये भी आपके स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर आएंगे, और ये जो सैटेलाइट है लास्ट वाला बिल्कुल, ये आपका स्पेस के अंदर जाएगा। सो दीज 4 जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं आपके सामने हैं, और डिफरेंट चीजें इनके ऊपर होंगी। व्हेन यू विल गो टू ओपन दिस वन, यू कैन एंजॉय दिस बाय मूविंग ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स टू देयर प्रॉपर पोजीशंस। आप ले जाएं इनको अपनी प्रॉपर पोजीशन में, और आप देखें कि जी कौन सा पार्ट जो पोर्शन है वो कहाँ जाएगा। आपको आगे ये एनिमेशन बताएगी कि योर आंसर इज राइट वन और रॉन्ग वन। तो आप ये देख सकते हैं वहां पे कि जी जो बैलून है वह कौन से लेयर के अंदर मूव कर सकती है, एरोप्लेन कौन से लेयर के अंदर मूव करता है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यानी जो परिंदे हैं वो कौन से सेगमेंट के अंदर मूव करते हैं। उसके बाद क्लाउड्स कहाँ जाएंगे, सैटेलाइट्स जो हैं वो किस जगह पे मूव कर रहे होती हैं अराउंड द अर्थ, जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर किस जगह पे मूव कर रही हो। ऑल दीज कैन बी डेल्ट विद द हेल्प ऑफ दिस एनिमेशन। आप इसको जब यूज करेंगे तो यू विल गो टू एंजॉय दिस वन कि वेयर दीज पार्टिकल्स exist. Okay friends, that is the end of
today's lesson. But you know that when we complete the lesson, we are very much happy to check out your comprehension as well, how much you have got from this lesson. तो आपके लिए कुछ हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रखे हैं जो कि हमें टेस्ट करने में आसानी रहेगी, एंड यू मस्ट गो टू आंसर दीज क्वेश्चंस एज वेल. So the first multiple choice question relating to today's lesson: which of the following segments of environment is expected to be the kingdom of living organisms? आपको बताना है कि जी which of the following segments of environment is expected to be the kingdom of living organisms? जिसमें हमने आपके लिए ऑप्शंस रखे हैं, आया वो हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, बायोस्फीयर है या एटमॉस्फेयर है. Which of the following segments of environment is expected to be the kingdom of living organisms? Is it hydrosphere, lithosphere, biosphere or atmosphere? Friends, second question of today's lesson: which of the following segments of environment contain ozone? आपको बताना है कि चार आपके पास चॉइसेस हैं जिसमें आपको बताना है कि कौन से सेगमेंट के अंदर ओजोन का लेयर मौजूद होगा. थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर या ट्रोपोस्फेयर. Which of the following segments of atmosphere contain ozone? Thermosphere, stratosphere, mesosphere or troposphere? जी फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेसन: which of the following layers of atmosphere is called ionosphere? बताना है आपको ये कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा लेयर है जिसका दूसरा नाम हमने आयोनोस्फीयर रखा हुआ है. इज इट थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और troposphere? Which of the following layers of atmosphere is called ionosphere, thermosphere, mesosphere, stratosphere or troposphere? जी फ्रेंड्स, that's